Good afternoon to all. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी सर, सभी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर विकास प्रजापति, उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देके आज का सेशन जो फर्स्ट टेक्निकल सेशन है वो शुरू करना चाहूँगा। सर अपनी ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। फिलहाल सर असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस 15 साल से भी ज़्यादा है और इनके अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर होते हुए भी अगर इनका हम एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देखें तो 30 से भी ज़्यादा इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर पब्लिकेशन किए हैं। तकरीबन 50 जितने उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस पे रिसर्च पेपर है वो अपने प्रेजेंट किए हैं। 8 जितने इंटरनेशनल वर्कशॉप एंड सिंपोजियम अटेंड किए हैं। 25 से भी ज़्यादा जो UGC HRDC सेंटर्स हैं या कोई वर्कशॉप है या कोई भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहाँ पर एज ए एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। और 6 जितनी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में इन्होंने अपनी बुक या चैप्टर्स है वो कंट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा सर एथलेटिक्स में लेवल 1 कोच भी है, हॉकी में लेवल 2 कोच है और रिसेंटली पिछले 5-6 सालों से सर अपनी सर्विसेज एज ए ANO भी MS यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। With this note, I would like to welcome Dr. Vikas Prajapati sir on behalf of the entire organizing team and the participants also. Welcome sir, welcome. नमस्कार, थैंक यू जेठवा साहब। आदरणीय डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा साहब, माननीय वाइस चांसलर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हिमांशु पंड्या जी, वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जगदीश भावसार, प्रो वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जयराज पंड्या, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम गुजरात यूनिवर्सिटी, અને ડોક્ટર કુનાલ દેસાઈ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ સેક્રેટરી ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ SJSU, અને ડોક્ટર યજુવેન્દ્ર સિંહ જેઠવા સાહેબ, આદરણીય રજિસ્ટ્રાર સ્પોર્ટ્સ સ્वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी, माननीय सिंडिकेट मेम्बर, सेनेट मेम्बरश्रीओ તેમજ આજે અહીંયા ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત વિવિધ કોલેજના આદરણીય શારીરિક શિક્ષાના અધ્યાપકશ્રીઓ, શિક્ષકગણો અને આદરણીય ગુરુજનો, વડીલો અને મિત્રો, આપ સર્વનો આભાર। આપ ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં આજે આપના મને સાંભળી રહ્યા છો। આજે આપણો ટોપિક જે છે એ હું આપની જોડે શેર કરી રહ્યો છું। જેઠવા સાહેબ, મારો પ્રેઝન્ટેશન સ્ક્રીન દેખાતો હશે? जी साहब, बिल्कुल क्लियर विजिबल છે સર। ઓકે, થેન્ક યુ। મિત્રો, આપણે એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝમાં જે યુનિવર્સિટી નેશનલ ગેમ્સ થાય છે એમાં દર વર્ષે ગત 1.5 વર્ષને છોડીએ તો એ પહેલા જ્યારે નોર્મલ કન્ડિશન્સ હતી ત્યારે આપણે એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝની યુનિવર્સિટી નેશનલ્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા દર વર્ષે જઈએ। તો ત્યાં જે કોમ્પિટિશન સ્પર્ધાઓ થાય છે તો એના માટેના નિયમો અને રેગ્યુલેશન્સ જે એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝ એ નિર્ધારિત કરેલ છે। એ આપ સર્વે વિદિત હશો કે દરેક ટીમ જોડે કોઈ ને કોઈ ટીમ જોડે હાલ જોડાયેલો હોય છે રમતમાં। ત્યાં યુનિવર્સિટી નેશનલ ગેમ્સમાં, બેઝ ઝોનમાં, ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્ટર યુનિવર્સિટીમાં, ટીમ ગેમ્સમાં કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગેમ્સમાં દરેક જગ્યાએ આપણે મેનેજર તરીકે, કોચ તરીકે સેવા આપીએ છીએ। પણ આ મારો એક સાધારણ પ્રયાસ રહેશે કે જે એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટી ભારતીય વિશ્વવિદ્યાલય સંઘ તરફથી જે એમની રૂલ્સ બુક છે, રૂલ્સ બુકમાંથી જે અમુક જે જોઈતા
રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે કે જેની જાણકારી આપણને મેનેજર તરીકે એઝ અ કોચ તરીકે હોવી જોઈએ અને હોય જ છે, છતાં પણ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં આપણે એને એક એક ફરીથી એના ઉપર એક નજર નાખી છે. ભારતીય ઇન્ડિયન હાયર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષાની વાત કરીએ તો હાલ ફેબ્રુઆરી મહિના સુધીમાં જો તમે જુઓ તો એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝ એઆઈયુમાં 970 યુનિવર્સિટીઝ ભારતભરની અને વિદેશની યુનિવર્સિટીઝ જે છે એ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝના બેનર હેઠળ આવે છે. આ જે આંકડો છે 4 ફેબ્રુઆરી 2021ના એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવેલો હતો. જ્યારે વાત કરીએ છીએ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટી, એ માત્ર ભારતીય વિશ્વવિદ્યાલય સંઘમાં ભારત સિવાયની પણ 13 એવી યુનિવર્સિટીઝ છે જેમાં બાંગ્લાદેશ છે, ભૂતાન છે, કઝાકિસ્તાન છે, મલેશિયા છે, મોરેશિયસ, નેપાલ, થાઈલેન્ડ, યુએઈ અને યુકે એ દેશની 13 યુનિવર્સિટીઝ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝમાં આપણી જોડે જોડાયેલી છે. એટલે આજે 970 યુનિવર્સિટીઝની વાત કરું તો તેમાં 420 સ્ટેટ યુનિવર્સિટીઝ છે, રાજ્ય સરકાર સ્તરની યુનિવર્સિટીઝ છે. ડીમ ટુ બી યુનિવર્સિટીઝ એ 125 યુનિવર્સિટીઝ ડીમ ટુ બી યુનિવર્સિટીની લિસ્ટમાં છે. કેન્દ્ર સરકારના હસ્તકની 54 યુનિવર્સિટીઝ જે છે એ કેન્દ્ર સરકારના હસ્તકની છે. અને જ્યારે ખાનગી વિશ્વવિદ્યાલયની વાત કરીએ તો 371, એટલે ટોટલ મળીને 970 યુનિવર્સિટીઝ ભારતભરમાં છે. યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સ બોર્ડની જો વાત કરીએ તો 1919માં સેડલર કમિશને એક રિકમેન્ડેશન મોકલ્યું હતું કે એસોસિએશન એક સંઘ હોવો જોઈએ જે યુનિવર્સિટી, વિશ્વવિદ્યાલય, કોલેજીસ માટે કામ કરતો રહે. તો એના માટે એ પ્રસ્તાવ હતો, એ પ્રસ્તાવને 1924માં સિમલામાં વિવિધ વિશ્વવિદ્યાલયના વાઇસ ચાન્સલરની બેઠક મળી, કોન્ફરન્સ મળી, ત્યારે પ્રસ્તાવ પાસ કરવામાં આવ્યો. અને પ્રથમ જે બોર્ડ બન્યું એનું નામ હતું ઇન્ટર યુનિવર્સિટી બોર્ડ, જે 23 માર્ચ 1925ના રોજ એક એપેક્સ ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે બનવામાં આવ્યું. અને 1973માં જે છે એનું નામ ફરીથી રિનેમ કરીને હાલનું જે નામ છે એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝ એ નામ આપવામાં આવ્યું. પ્રસ્તાવના એ હતી કે જ્યારે 1925માં બોમ્બેમાં વિવિધ વિશ્વવિદ્યાલયના વાઇસ ચાન્સલર મળ્યા, ત્યારે એમનો વિચાર એવો હતો કે યુનિવર્સિટી એક એવું પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ કે જ્યાં બધી યુનિવર્સિટી વચ્ચે એક કોર્ડિનેશન રહે, એક કોમન પ્લેટફોર્મ મળે કે જ્યાં માત્ર એજ્યુકેશન જ નહીં પણ શિક્ષકો, યુનિવર્સિટી પોતે, યુનિવર્સિટીનો સ્ટાફ અને યુનિવર્સિટી સંલગ્ન દરેક જણ જે છે તે શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ, રમતગમત અને દેશના અલગ અલગ વિષયો જે છે એના ઉપર એક કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપર આવીને વાત કરે. તો જ્યારે આ જે વિચાર હતો 1925માં જ્યારે એસ્ટેબ્લિશ થયો ઇન્ટર યુનિવર્સિટી બોર્ડ તરીકે, ત્યારબાદ 1973માં એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝ તરીકે એને એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ આપવામાં આવ્યું. અને એનો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો એ હાયર એજ્યુકેશનમાં ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ થાય, હાયર એજ્યુકેશનથી જોડાયેલા દરેક વ્યક્તિની ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ થાય, તે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો. તો એ સાથે સાથે જોઈએ તો હાલના સમયમાં એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીનો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે આપણા ક્ષેત્રના લગતે, તો એ છે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ટર યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સ બોર્ડ છે, જેને આપણે ફિસુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ઇન્ટરનલ યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સ ડી ફેડરેશન્સ. એના માટે ભારતની ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીની ટીમ પસંદ કરવી અને એ પસંદ કરીને અને વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું. હાલના સમયમાં જોઈએ તો 2017માં જ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ
એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝને નેશનલ સ્પોર્ટ્સ પ્રમોશન ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ટેગ આપેલ છે કે જેનાથી ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટી યુથ સ્પોર્ટ્સ જે છે એને વધારે ને વધારે પ્રબળ વાતાવરણ મળે કે જેથી ઇન્ડિયન યુથ જે છે એ વર્લ્ડ લેવલના સ્પોર્ટ્સ ઉપર પોતાનું નામ કરે અને દેશનું નામ કરે. તો આ એક ભારતીય વિશ્વવિદ્યાલય સંઘનો એક ઇતિહાસ આપણે જાણ્યો. અને તો એ ઇતિહાસમાં ત્યારબાદ આપણે જે હાલમાં યુનિવર્સિટી નેશનલ ગેમ્સ તરીકે ઓળખાય છે એઆઈયુ ગેમ્સ, એનામાં ભાગ લેવા માટે શું શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એના વિશેનું અમારું પ્રેઝન્ટેશન રહેશે, જેમાં આપણે સૌથી પહેલા રમતો વિશે જાણીશું, ત્યારબાદ પાત્રતા એલિજિબિલિટી શું રહેશે, ડોક્યુમેન્ટેશન કયા કયા દસ્તાવેજો હોય છે, ત્યારબાદ કયા કયા સ્થળે એનું આયોજન થાય છે, ઝોનલ લેવલ, ઇન્ટર ઝોનલ લેવલ, અને ત્યારબાદ એની પ્રોસિડિંગ્સ, છેલ્લી જે પ્રોસિડિંગ્સ છે એની જાણકારી લઈશું અને કાર્યવાહી બાદ આપણે આ લેક્ચરને સમાપ્ત કરીશું. તો જો આપણે વાત કરીએ ગેમ્સ એન્ડ સ્પોર્ટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનની વાત કરીએ એઆઈયુના બેનર હેઠળ, તો ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની લગભગ 105 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ ભાઈઓ અને બહેનો વિભાગમાં થાય છે, જેમાં અમુક જે છે ડેમોન્સ્ટ્રેશન ગેમ તરીકે પણ એમનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. 24 જે મેન અને વુમેન સેક્શનમાં થતી રમતો છે, ટીમ રમતો, એ ઝોનલ લેવલ ઉપર થાય છે અને ત્યારબાદ એનું ઇન્ટર ઝોનલ લેવલ ઉપર એનું આયોજન થાય છે. આ જે 105 અને 124 ઇવેન્ટ માટેની જે કેલેન્ડર છે એ જે છેલ્લું કેલેન્ડર જ્યારે આવ્યું 2019-20માં, એના ઉપરથી આ ડેટા આપણને મળેલ છે. જો એલિજિબિલિટી, પાત્રતા શું છે, પાત્રતા વિશેના નિયમો શું છે એના વિશેની જાણકારી લઈએ તો એમાં પાત્રતાના નિયમો માટે કેમ બનાવવાની જરૂર પડી, કયા કયા વિદ્યાર્થીઓ હોઈ શકે, ઉંમર વય મર્યાદા કઈ હોઈ શકે, સમયગાળો કયો હોઈ શકે, અને સ્ટાઇપન્ડ વિશેની જે જાણકારી છે જે એલિજિબિલિટી રૂલ્સના અંડરમાં આવે છે. તો એલિજિબિલિટી રૂલ્સ જો આપણે સમજીએ તો એક ફરજિયાત નિયમ છે કે જે એડમિશન માટે અથવા તો યુનિવર્સિટી ટીમની સિલેક્શન માટે જરૂરિયાત કમ્પલસરી હોય છે, મેન્ડેટરી હોય છે, જે ફરજિયાત હોય છે. એટલા માટે એને એલિજિબિલિટી રૂલ્સ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે, જેનાથી વિદ્યાર્થી જે છે આપણી કોલેજમાં, આપણી યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લઈને પોતાની પાત્રતા જે છે યુનિવર્સિટી ટીમ્સમાં જગ્યા બનાવે અને યુનિવર્સિટીની ટીમને ઝોનલ, ઇન્ટર ઝોનલ લેવલ ઉપર પાર્ટિસિપેટ કરીને અને વિશ્વવિદ્યાલયને નામના અપાવે. કયા કયા સ્ટુડન્ટ જે છે એ એલિજિબલ છે, તો જે વિદ્યાર્થીઓ, જે ખેલાડીઓ રેગ્યુલર ફૂલ ટાઈમ કોર્સમાં એડમિશન લીધેલ છે અને બોનિફાઈડ સ્ટુડન્ટ છે, તે જ ઇન્ટર યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં ભાગ લેવા માટે એલિજિબલ છે. એનરોલમેન્ટ હોવું જોઈએ, કોર્સ યુનિવર્સિટીના કોઈ પણ કોર્સમાં એનું એનરોલમેન્ટ હોવું જોઈએ, અને કોર્સ જે છે એ મિનિમમ 1 વર્ષ નો એકેડેમિક યર હોય કે જે જૂનથી લઈને નેક્સ્ટ યર સુધી માનવામાં આવે છે, નેક્સ્ટ મે સુધી માનવામાં આવે છે. ત્યાં સુધી એકેડેમિક યર દરમિયાન એનું એડમિશન 1 વર્ષ માટેનું હોય છે. Okay, I got sure. Tara Shahdev, I'll definitely I'll try to speak in Hindi and English too. Okay, so हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है जो इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है. एडमिशन जो है शायद कोई भी ले सकता है. यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से एडमिशन्स अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है तो वो फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, और वो मिनिमम 1 ईयर एकेडमिक ईयर के कोर्स में उसका स्टूडेंट का एनरोलमेंट होना चाहिए. और उस कोर्स जो है, उस कोर्स की एग्जामिनेशन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होनी चाहिए. वो स्टूडेंट ही जो है वो इस इंटर यूनिवर्सिटी
टूर्नामेंट में खेलने के लिए एलिजिबल है। ओके। और जो इसके अलावा अगर आप कोई प्रोविजनल एडमिशन्स होते हैं किसी भी कोर्स में, यूनिवर्सिटीज में, तो वो वैलिड एलिजिबिलिटी नहीं गिनी जाती इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, including PhD students and MPhil PhD scholars and MPhil students जो है, those are also eligible subject to the other conditions of age criteria and all other criteria same age limited is minimum 17 years to maximum 25 years. Less than 25 years of the 1st July of the academic year. Any student who is below 25 years on the 1st July of that academic year is eligible to participate in the inter-university games. Okay. Period of eligibility उन्होंने जो है वो 2 हिस्सों में की हुई है। 8 साल से ज़्यादा, not more than the 8 year student can participate in inter-university tournament। अगर 8 साल को भी उन्होंने देखा जो कहाँ से काउंट करना है, तो वो जो उनकी एग्जामिनेशन है जो यूनिवर्सिटी में पहला एडमिशन लेने की, वहाँ से वो जो पास करते हैं वहाँ से उनका काउंट होना शुरू होता है। इसका मतलब है कि जिस साल में स्टूडेंट ने 12th पास किया हुआ है उसी साल से उसका 8 साल का पीरियड फॉर द पार्टिसिपेशन जो है वो काउंट होना शुरू हो जाएगा, ना कि जो बच्चा आपके पास पहली बार एडमिशन लेता है तब से। Okay, so further the 8 year is also divided in 5 years for the bachelor's graduation courses। 5 साल 10+2 12th करने के बाद जो है ग्रेजुएशन में अगर वो खेलना चाहता है तो 5 साल खेल सकता है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में है तो वो 3 साल जो है वो आफ्टर पासिंग द ग्रेजुएशन, मतलब जब से उसने ग्रेजुएशन पास किया है वहाँ से 3 साल के बीच में वो खेल सकता है, ना कि जब आपका पीजी में एडमिशन होता है वहाँ से नहीं होता। जैसे ही वो पास कर लेता है ग्रेजुएशन की डिग्री, वहाँ से उनका 3 साल का ड्यूरेशन जो है काउंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फॉर इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर स्पोर्ट्स एथलीट्स, थोड़ा सा AIO ने 4 साल पहले एक चेंज किया था कि जो क्लास चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है या फैकल्टी चेंज करनी है हायर क्लास से लेकर लोअर क्लास में जाने के लिए, तो वो भी परमिसेबल वो है फिलहाल के कोर्सेज में। ठीक है। या फिर किसी एकेडमिक कोर्स से लेकर वो प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता है तो भी जो स्टूडेंट है उसको अलाउ है। अगर वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है और वो अगर दोबारा 1st ईयर में एडमिशन लेता है तब भी इस पिछले जो रूल्स रेगुलेशंस आए थे उसमें अलाउड है। अगर जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज है जिसमें 3 साल से ज़्यादा के कोर्सेज है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इवन BPES 4 ईयर है, फार्मेसी, ऐसे जो कोर्सेज है जिनके जो लेंथ है वो 3 साल से ज़्यादा है, उनके जो एक्चुअल लेंथ होगी वो एक्चुअल लेंथ आपके पीरियड ऑफ एलिजिबिलिटी में इन अंडर ग्रेजुएट काउंट की जाएगी। जो स्टाइपन ले रहे हैं या माइग्रेशन जो खिलाड़ी ले रहे हैं उनके लिए जो है ये नियम है कि वो किसी भी कंडीशन में फुल टाइम एम्प्लॉय किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में नहीं होना चाहिए। और अगर वो स्टाइपन लेता है किसी भी स्पोर्ट्स एजेंसी से, अगर वो अपने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करवाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करवाता है, तो हर एक उस एजेंसी से उसको NOC लेना कंपलसरी रहता है। ठीक है। जैसे ये स्पेशली पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, एयर इंडिया है, ऐसी बहुत सारी पंजाब PNB बैंक है, ऐसी बहुत सारी
स्पोर्ट्स प्रमोट स्कीम्स चलाते हैं, जिसमें इनको प्लेयर्स को स्टाइपेंड्स दिया जाता है और अपने स्टडी भी कंटिन्यू करते रहे और स्पोर्ट्स एक्सीलेंस को भी कंटिन्यू करते रहे। उस कंडीशन में उसको अपनी एजेंसी से एनओसी लेना जरूरी है। एक साल में जो है कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी एक ही यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो दो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी में वो नंबर ऑफ गेम्स को जो वो रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर वो माइग्रेशन लेता है स्टूडेंट जो है दूसरी यूनिवर्सिटी से आके अगर माइग्रेशन लेता है, तो जब तक उसका एडमिशन रेगुलराइज एडमिशन और बोनाफाइड स्टूडेंट लिस्ट में नहीं आता, तब तक वो माइग्रेटेड स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं होगा इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, क्या क्या कागज कार्रवाई ज़रूरी है हमारे लिए, तो स्टूडेंट के तौर के ऊपर हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होने चाहिए, यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर करना चाहिए। एज अ मैनेजर, एज अ टीम कंपेनियन जब हम जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए उसकी बात करते हैं। और आखिर में जो है परफॉर्मा जो है वो यूनिवर्सिटी परफॉर्मा आपको जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के टाइम पे ले जाना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले जो है उसकी एज के लिए जो हमने बात की कि 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए, तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो है वो एसएससी में जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में होती है वो, या तो फिर आपका जन्म का प्रमाण पत्र जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है, उसकी जेरोक्स और ऑथोराइज्ड जेरोक्स कंपलसरी है। जो समय के जो 8 ईयर पीरियड है, 8 ईयर पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन, उसको काउंट करने के लिए आपके पास 10th+2 की यानी फर्स्ट एडमिशन आपकी यूनिवर्सिटी में जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर के ऊपर जो एग्जाम उसमें लास्ट में क्लियर किए 10th, उस 10+2 यानी 12 की मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए। वहां से उसके अंडर ग्रेजुएशन के पीरियड जो है काउंट होना शुरू हो जाता है। आई कार्ड जो है वो जो जिस यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में होता है उसका होना जरूरी है। फीस स्लिप जो है वो ऑप्शनल में है, लेकिन फीस स्लिप जो है हमारे लिए हमारे कॉलेज के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो फीस जमा नहीं करवाता तब तक उसका एडमिशन जो है वो प्रोविजनल एडमिशन में ही काउंट होता है। जिस दिन वो फीस जमा करवाता है उसका कंफर्म एडमिशन जो है काउंट होता है। अगर किसी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है तो जो लास्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है उसकी डिग्री सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अगर डिग्री सर्टिफिकेट कन्वोकेशन नहीं हुआ है तो डिग्री सर्टिफिकेट की बजाय वो जो है लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट जिसमें वो पास हो वैसा लिखा हो वो वैलिड काउंट की जाती है, जहां से उसके 3 साल का पार्टिसिपेशन जो है ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पार्टिसिपेशन है वहां से काउंट होगा। और हाल ही में एंटी डोपिंग एजेंसी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बढ़ रहे डोपिंग और इन सब के प्रभाव को कम करने के लिए AIU ने 2015-16 में एक अंडरटेकिंग फॉर्म लिया था, जिसमें सारे एंटी डोपिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हम फॉलो करते हैं। वो एथलीट भी फॉलो करता है और एथलीट से हम एज अ कोच हम लोग फॉलो करवाते हैं, एज अ मैनेजर हम लोग उसको फॉलो करवाते हैं। इसकी अंडरटेकिंग फॉर्म भी जो है ये AIU ने परफॉर्मा बनाया हुआ है, उसको आपके साथ ले जाना होता है। अगर ये एंटी डोपिंग में कहीं पर कोई वायोलेशन होता है आपके एथलीट के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा, तो ये जो फॉर्म्स है इस फॉर्म के तहत जो है वो कार्यवाही होती है। ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हमने बताया जो स्टूडेंट के पास से हमें कलेक्ट करने हैं वो जो है आपके यूनिवर्सिटी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स या प्रिंसिपल
ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज है, या फिर बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, या तो कोई भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो उसको साइन करेगी और ऑफिशियल सील के साथ जो है ये सारी जेरोक्स कॉपी जो है ओरिजिनल वेरीफाई करने के बाद सारी जेरोक्स कॉपी जो है ये जहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वहाँ पर ले जाना होता है। अगर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ये जो स्टूडेंट के सभी लिस्ट है, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनकी जो लिस्ट है वो एलिजिबिलिटी परफॉर्मा में हमें फुल कंप्लीट एलिजिबिलिटी परफॉर्मा जो है वो 4 कॉपी में हमें वहाँ पर सबमिट करना होता है। साथ ही साथ जहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वहाँ होस्ट यूनिवर्सिटी को हमें ये जो स्टूडेंट से सारे हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं, वेरीफाई किए हैं और अटेस्टेड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी जो है वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, 12th की मार्कशीट है, अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट है और आई कार्ड जो है वो वहाँ पर सबमिट करना है। साथ ही में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के लिए हर एक यूनिवर्सिटी को अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो जमा करवानी होती है। लास्ट नॉर्मल सिनेरियो तक था वो तकरीबन 55,000 अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज पर एनम जो है एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस थी। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन लोगों के लिए 55 अप्रोक्सीमेटली 55,000 की जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस थी, उसकी फीस जो आपने एक बार पेमेंट की हुई है वो बाकायदा वो जो पेमेंट है वो आपके थ्रू फाइनेंस ऑफिसर और या आपके रजिस्ट्रार के थ्रू ही हुआ होगा, लेकिन उसकी जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आप वहाँ पर ले जाए ताकि लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड जो है वो आपसे अगर रिसिप्ट मांगता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी है वो आपको आपका जो अपॉइंटमेंट है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं एज अ कोच, एज अ मैनेजर या टीम कंपेनियन, इस चीज़ के लिए लेटर भी मांगती है। ये ज़्यादातर जो है ये साउथ की जब इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या इंडिविजुअल गेम्स की इंटर यूनिवर्सिटी साउथ में ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये कभी कभार ऑप्शनली ये मांगा जाता है। पर बेटर है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो एक लेटर जो है आपकी फाइल के साथ यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट में रहे तो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है आपको कहीं पर भागने की ज़रूरत ना हो या लास्ट 11th आवर के ऊपर कोई भी हौच पौच की पॉसिबिलिटी ना हो। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी परफॉर्मा अगर देखते हैं तो एलिजिबिलिटी परफॉर्मा जो है वो let me stop my sharing and ये जो परफॉर्मा आप देख रहे हैं ये है एलिजिबिलिटी परफॉर्मा जो कि 15 कॉलम्स का रहता है, जहां पर ये सारी डिटेल्स जो है आपके पार्टिसिपेंट के जो डिटेल्स है वो इस 15 कॉलम्स में लिखे जाते हैं। जहाँ पर ऊपर से अगर हम लोग शुरुआत करें तो नेम ऑफ टूर्नामेंट, किस टूर्नामेंट और गेम का है वो इसमें है, किस सेक्शन में टूर्नामेंट हो रहा है वो आपको लिखना है, नेम ऑफ द मैनेजर जो है वो आपको पूरा लिखना है और स्टेटस मैनेजर का है वो भी पूरा आपको यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। नेम ऑफ द होस्ट यूनिवर्सिटी जो AIU ने जिसको ये जिम्मेदारी दी होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अगर जोन है तो ये जोन हम लोग वेस्ट जोन में आते हैं तो वहाँ पर वेस्ट जोन लिखा जाता है, अगर इंटर जोनल है तो इंटर जोनल का ही लिखा जाता है। और नेम ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी यानी अगर हम गुजरात यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम पूरा लिखा जाएगा। ईयर जो है ये लास्ट एलिजिबिलिटी परफॉर्मा था जब सारे नॉर्मल फॉलो किए जाते थे, तब की ये ईयर
2020 का ये परफॉर्मा है, जिसमें फर्स्ट में जो है फुल नेम ऑफ कैंडिडेट जो है कॉलम 1 में, सेकंड में फादर नेम है, थर्ड में मदर नेम है, किस कॉलेज में किस फैकल्टी में स्टूडेंट जो है पढ़ रहा है वो यहाँ वहाँ लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, जिसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एसएससी की मार्कशीट या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी रहती है। फर्स्ट एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी टू द कॉलेज जो है वो हमें लिखना है नेम ऑफ एग्जाम, यानी अगर 12th करके आता है तो 12th लिखना है। अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी में पीजी में अगर एडमिशन आता है तो वहाँ पर पीजी का आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर जो बच्चा आपके पास अंडर ग्रेजुएट में आप ही की यूनिवर्सिटी में था और पीजी में भी आपकी यूनिवर्सिटी में था, तो उसका जो फर्स्ट एडमिशन जो है वो 12th के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा, जहाँ पर 12th या HSC लिखा जाएगा। और उसके साथ डेट एंड ईयर जो है आपको लिखना है, जो उसकी मार्कशीट में जो लिखा होगा मार्च 2019, अप्रैल 2019, जुलाई 2019 जो भी होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उनका प्रेजेंट क्लास जो है वो यहाँ पर लिखना है कि फर्स्ट सेम है, या अगर अंडर ग्रेजुएट है तो फर्स्ट सेम रहेगा, अगर मास्टर डिग्री है तो उसमें प्रीवियस और फाइनल रहेगा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में है या डिप्लोमा में है तो प्रेजेंट क्लास जो है वो PGDM जो भी रहेगा, या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फाइनेंस जो भी है वो उसका नाम रहेगा। और नेम ऑफ द प्रेजेंट कोर्स जो है वो यहाँ पर BCom, MCom, BSc, MSc, BPharm, MPharm, MBBS, MD जो भी रहेगा वो यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स फुल लिखा जाएगा। और साथ ही में जो है कॉलम नंबर 10 में जो है ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स की वो लिखी जाएगी। 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 1 साल का है, या 5 साल का कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स में जो है कॉलम नंबर 11 और 12 में जो है इस कोर्स में लिखा जाता है कि आपका जो अभी फिलहाल जो आपका प्रेजेंट कोर्स है उस कोर्स में कब से एडमिशन है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और प्रेजेंट कोर्स जो है वो सेम रहेगा। बैचलर्स के केस में, मास्टर्स के केस में जो है ये डिफरेंट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में पहला जो है वो 2 साल पहले का, 3 साल पहले का उसका एडमिशन होगा, और प्रेजेंट कोर्स यानी मास्टर डिग्री में जो है वो इस साल जब वो एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेगा वो लिखा जाएगा। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो वो 1 ही साल का कोर्स रहता है, तो उसमें भी प्रेजेंट कोर्स में प्रेजेंट एकेडमिक ईयर का ही लिखा जाता है। नंबर ऑफ प्रीवियस पार्टिसिपेशन जो है वो अंडर ग्रेजुएट में कितनी बार खेला हुआ है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, ग्रेजुएट में कितनी बार खेला हुआ है वो 13 और 14 कॉलम नंबर में इसको आपको लिखना होता है, नंबर ऑफ प्रीवियस पार्टिसिपेशन इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। ओके, और ये जो पीछे पेज नंबर 2 है एलिजिबिलिटी परफॉर्मा फॉर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, यहाँ पर जो है सारे माइग्रेशन केसेस है, या फिर जिन्होंने क्लास चेंज की हुई है, हायर क्लास से लोअर क्लास में आए हैं, या फैकल्टी या प्रोग्राम चेंज किया है, उसकी डिटेल्स जो है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाती है आपके एडमिशन्स के डेटा के बेस के ऊपर। और यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी का सील जो है वो, और साथ ही साथ आपके डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स इंचार्ज या फिर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो है उनकी सिग्नेचर यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ जो है ये आगे के पेज के ऊपर भी जो है सेम चीज डेट के साथ फर्स्ट पेज के ऊपर भी यूनिवर्सिटी सील जो है ऑथोराइज स्टैम्प जो है वो रहेगा, और स्टैम्प के साथ आपके स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है या सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स है उनके सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर होने हैं। सो दिस इज द eligibility performa that we should carry for the participation in inter university tournament। और ये जो परफॉर्मा है ये आपको 4 कॉपी जो है वहां पर सबमिट करनी है, यानी कि आपको जो है कम से कम 5 या 6 कॉपी आपको ले जानी है, जिसमें एक कॉपी जो है वो आपको रिसीव्ड कॉपी के तौर के ऊपर साइन स्टैम्प कर कर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की साइन और स्टैम्प कर कर वो आपको वापस देंगे। तो जो प्रोसीडिंग्स है उसमें प्रोसीडिंग्स में आगे हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको जब वापस लानी है तो उस टाइम पे ये चीजें आपको काम में आएंगी। अगर हम लोग बात करें
किस स्तर के ऊपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये जोनल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है, जोनल के बाद इंटर जोनल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट होती है, और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर टूर्नामेंट होती है, जहाँ पर पार्टिसिपेशन लेवल जो है टीम्स का कम होता है, या फिर जहाँ पर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है आपके लिए डायरेक्ट जोनल टूर्नामेंट होती है, इंटर जोनल टूर्नामेंट होती है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जोनल लेवल की अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो हम जो है वो वेस्ट जोन में आते हैं, पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर अगर पूरे इंडिया की जो 970 यूनिवर्सिटीज है उसको टूर्नामेंट के बेस के लिए 4 जोन में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और हम जो जिसकी बात करें तो वेस्ट जोन में हम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो है और गोवा, इन 5 स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज जो है ये वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। गुजरात में तकरीबन तकरीबन अगर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 का अगर डेटा देखें तो 72 यूनिवर्सिटीज जो है वो थी। महाराष्ट्र में 62 यूनिवर्सिटीज थी, मध्य प्रदेश में 65 यूनिवर्सिटीज थी, राजस्थान में 83 यूनिवर्सिटीज थी, गोवा में 3 यूनिवर्सिटीज थी। तो पिछले 2 सालों में आई एम श्योर कि ये जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ये बढ़ा ही होगा। तो वेस्ट जोन में अगर हम लोग देखा जाए तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 250 के बराबर की यूनिवर्सिटीज जो है उनके साथ हम लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वेस्ट जोन में टूर्नामेंट अगर देखी जाए तो बैडमिंटन गेम है, बास्केटबॉल है, चेस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल. This tournament being in a man and women section separately organized under the West Zone Inter University Tournament under the aegis of Association of Inter Universities. अगर हम लोग वेस्ट जोन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका फिक्चर पैटर्न है ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि जब हम लोग पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो हमारी टीम अच्छी होती है, तो हमारी टीम के साथ कहीं पर कोई इश्यूज ना आ जाए, उसके लिए हम लोग को फिक्चर पैटर्न समझना होता है। ये फिक्चर जो है ये नॉकआउट कम लीग पैटर्न के ऊपर आपकी टूर्नामेंट होती है। जो लास्ट ईयर की 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर चुकी थी, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, और जिन्होंने वो लास्ट ईयर की टीम जो है उनको सीडेड टीम के तौर के ऊपर नॉकआउट फिक्चर में रखा जाता है। वो जो है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन राउंड जो है वो जोनल टूर्नामेंट का खेलती है। और ये जो 4 पूल बनाए जाते हैं, 4 क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर ए पूल जो है उसमें लास्ट ईयर का 2nd पोजीशन जो है जोनल में, वेस्ट जोन में, वो आपके पूल में, ए पूल में रहेगा। बी पूल में जो है वो 4th पोजीशन की टीम जो है वो रहेगी। सी में जो है वो 3rd पोजीशन की टीम रहेगी। और डी जो है, डी में लास्ट ईयर का जो विनर है, जिन्होंने वेस्ट जोन जो है चैंपियनशिप जीती थी, उसका चैंपियन जो है वो लास्ट पूल, डी पूल में रहेगा। ठीक है, और जब ये पूल्स के पूल में से जब टीमें नॉकआउट बेस के ऊपर हर एक पूल से जो टीम टॉप करके बाहर आती है वो, और जो क्वालिफाइज होती है वो लीग पैटर्न के ऊपर मैचेस खेलती है। मतलब कि 4 टीमें हैं, 6 मैचेस जो है लीग के तौर के ऊपर होगी। और ये जो चारों टीम है, ये चारों टीम जो है इस साल के लिए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी इंटर जोनल के लिए जो है क्वालिफाई मानी जाएगी। ठीक है, जब ये लीग जोनल लेवल पे खेलेंगे तो उसी लीग के बेस के ऊपर जो है, उनके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जो है वो उनका पोजीशन जो है वो डिसाइड किया जाएगा। एक्सेप्ट क्रिकेट जो है, क्रिकेट का फिक्सचर जो है वो क्वार्टर फाइनल्स या क्वार्टर तक नहीं रहते। उनमें जो फिक्सचर जो है वो लास्ट फाइनल तक खेली जाती है, जिसमें जो विनर और रनर अप है, मतलब फाइनलिस्ट जो है लास्ट 2 टीमें, वो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए, क्रिकेट के लिए क्वालिफाई होती है। AIU अगर हैंडबुक का अगर आपके पास हो तो उसमें अपेंडिक्स ई है, ये वहाँ से हमने ये रेफरेंस लिया हुआ है। इस पैटर्न को अगर हम लोग समझना चाहे जो हमने देखा, तो अगर ये देखिए फिक्सचर जो है, ये पूल ए में लास्ट ईयर की रनर अप
जो टीम है वो पूल ए में टॉप में है, बाकी जो टीमें हैं वो नॉकआउट के तौर के ऊपर ही रखी गई है। पूल बी में देखिए आप लास्ट ईयर की जो थर्ड रनर अप टीम है वो वहां पर रखी गई है। पूल सी में सेकंड रनर अप टीम है वो रखी गई है, और पूल डी जो है उसमें लास्ट ईयर का जो विनर है जोनल लेवल का उसको रखा गया है। और लास्ट अगर आप देखें नीचे तो लीग मैचेस जो है यहाँ पर जब वो लास्ट क्वालिफाइंग मैच जो है ऑल इंडिया में जब वो खेल लेते हैं सीडेड टीमें जो यहाँ से आगे की मैचेस से जो टीम बाहर निकल कर आती है वो लास्ट ईयर के सीडेड टीम के साथ खेलती है। तो वहाँ पर जो लास्ट क्वालिफाई करता है वो ऑल इंडिया में जाता है, और उस ऑल इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है वो जोनल बेस पे कैसे रहेगी, तो ये नीचे जो आप टेबल देख रहे हैं वो लीग मैचेस के शेड्यूल इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। इंटर जोनल टूर्नामेंट की अगर हम लोग बात करें तो इंटर जो टीमें जोनल लेवल के ऊपर 4 टीमें क्वालिफाई हुई है वैसे ही हर एक जोन से टीमें क्वालिफाई हुई है। तो हर एक पूल में जो है हर एक अगर ए पूल है तो हर एक जोन से एक एक टीम को जो है वहां पर प्लेस किया जाएगा। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं पूल ए में नॉर्थ जोन का फर्स्ट विनर जो है वो रहेगा, वेस्ट जोन की सेकंड पोजीशन, ईस्ट जोन की थर्ड पोजीशन, साउथ जोन की फोर्थ पोजीशन। इसी तरीके से हर एक 4 पूल में जो है लीग कम नॉकआउट बेसिस के ऊपर ये फिक्चर्स ड्रॉ किए जाएंगे। और इसमें से जो है क्वार्टर फाइनल जो है वो आपके पूल ए वर्सेस पूल बी हो सकता है, या फिर पूल ए विनर वर्सेस सी के 2 जो है उसको हो सकता है। ये जो सारी चीजें जो है जो पूल टॉप करने वाले और सेकंड पोजीशन आने वाली टीमों के मैनेजर्स के साथ बैठकर चीट के थ्रू जो है लॉट के थ्रू ये क्वार्टर फाइनल्स की जो लाइनअप है वो फिक्स की जाती है कि A1 के साथ कौन खेलेगा, D1 के साथ कौन खेलेगा, B1 के साथ कौन खेलेगा और C1 के साथ कौन खेलेगा। जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है वो जो है जनरली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और गेम्स की होती है, जहां पर जो पार्टिसिपेशन लेवल जो है वो या तो टीम गेम्स में बहुत कम है, नंबर ऑफ टीम जो है पार्टिसिपेशन में कम है, या फिर जो एग्जीबिशन गेम के तौर के एग्जीबिशन स्पोर्ट्स के तौर के ऊपर लागू किया गया है, वहां पर जो है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट डायरेक्टली होती है, जिसमें ज्यादातर जो है इंडिविजुअल इवेंट जो है वो होते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ इवेंट जो है वो भी आपके लास्ट ईयर 2019-20 के जो स्पोर्ट्स कैलेंडर जो है उसी के हिसाब से बना हुआ है। एथलेटिक्स, स्विमिंग और ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है उसमें जो लास्ट ईयर के ऑल इंडिया फाइनलिस्ट में जो 6th पोजीशन है वो 6th पोजीशन को जो है इस साल के क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड काउंट किए जाते हैं। अगर ये जो सारे पोजीशंस और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है ये आपके लास्ट ईयर के सारे रिजल्ट्स जो है जनरली अब जो है ये सारे अवेलेबल हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, होस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, और इसी के बेस के ऊपर जो है आप जो है इस साल के इंडिविजुअल गेम्स के सिलेक्शंस आप करते हैं। जब आप इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो पर टीम जो है और पर मैच जो है ऑफिशिएटिंग चार्जेस जो है वो पार्टिसिपेटिंग टीम्स को जो है हर मैच में या टूर्नामेंट वाइज जो है वो एंटायर टूर्नामेंट वाइज एक बार या फिर पर मैच जो है उसको सबमिट करना पड़ता है। अगर टीम गेम है तो हर मैच में आपको 1500 रुपये जो है मैच फीस आपको सबमिट करनी होती है। इंडिविजुअल गेम में अगर देखें तो आर्चरी है या वेट लिफ्टिंग है उसमें 2000 रुपीज आपकी पूरी टीम की जो है 2000 रुपीज फीस जो है वो जमा करवानी है। रेसलिंग चेस जो है उसमें 2500 रुपीज 2500 रुपये जो है आपको पूरी टूर्नामेंट की फीस एक साथ जमा करवानी है। और एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, रोइंग है, इन सब इवेंट्स में जो है ये 3000 रुपीज
आपको पर टीम जो है, आपको पर यूनिवर्सिटी आपको पर टूर्नामेंट सबमिट करवाना पड़ता है। इसकी रिसिप्ट जो है वो आपको जो होस्ट यूनिवर्सिटी है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की सिग्नेचर के साथ आपको देती है, जो आपकी प्रोसीडिंग्स जो है, इस प्रोसीडिंग्स में आपको बहुत काम में आएगी। अगर हम लोग देखें प्रोसीडिंग्स के किस पद्धति से इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया जाता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फीस जो है उसको देखेंगे, एंट्रीज कैसे भेजी जाती है, फिक्सचर्स जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, टूर्नामेंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद जब हम लोग वापस आते हैं तो पोस्ट टूर्नामेंट हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसकी हम लोग बात करेंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो हम बात कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए अराउंड जीएसटी और इस सबको मिलाकर 55,000 रुपीज़ पर एनम जो है वो एआईयू में आपको सबमिट करनी है। जो जो आपका एकेडमिक ईयर जो है शुरू होता है 1 जुलाई से, वहाँ से आपका पार्टिसिपेशन ईयर शुरू होता है। तो उसकी वजह से इस पीरियड के बीच 1 जुलाई के आसपास जो है आपकी यूनिवर्सिटी एआईयू में आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो सबमिट कर देनी चाहिए। ठीक है, एंट्रीज अगर हम लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एंट्रीज भेजनी है, किस तरीके से भेजेंगे, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो बिफोर मई जो है, मई जून के पहले जो है इसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जहाँ पर मेंबर्स और बोर्ड ऑफ मेंबर्स यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव जो है उस मीटिंग में जाकर वहाँ पर डिसीजन लेते हैं। जबकि अगर जो विलिंगनेस है आपकी, अगर यूनिवर्सिटी आपको वेस्ट जोन करवानी है, कोई भी इंटर यूनिवर्सिटी आपको स्पोर्ट्स करवानी है, तो उसके लिए बिडिंग जिसको बोलते हैं या इनवाइटिंग बिडिंग जो है वो फरवरी से शुरू हो जाता है। फरवरी से आपको एक परफॉर्मा जो है उसमें भरकर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर के सिग्नेचर के थ्रू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड में आपको भेजना होता है कि हम हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है, हम ये टूर्नामेंट करना चाहते हैं, और टेंटेटिव डेट जो है वो इस दरमियान रहेगी। तो जो ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी है उसके पास अधिकार रहता है अपने शेड्यूल डेट जो है वो डेट शेड्यूल करने का। डेट जो है वो टेंटेटिव, ज़्यादातर डेट टेंटेटिव रहती है। इसीलिए जब आप एंट्रीज भेजते हैं रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो एंट्रीज जो है जैसे ही आपके कैलेंडर आपके पास आ जाए और उसमें ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी का नाम जो है मेंशन हो जाए, आप तुरंत ही जो है अपनी एंट्रीज जो है एक लेटर में, कवर लेटर के साथ भेज दीजिए कि हमारी टीम जो है आपको दी गई इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट, बास्केटबॉल टूर्नामेंट, साइकिलिंग, चेस, वॉट एवर इट इज, उसमें पार्टिसिपेट के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की टीम आएगी। ठीक है, तो ये जो है ये एंट्री वेल इन एडवांस में रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटीज को मिल जाती है। फिर जो है वो डिटेल जो है ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी जो है वो वापस लास्ट डेट ऑफ एंट्री से पहले जो है एक बार सभी यूनिवर्सिटीज, जोनल लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज को इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर एक लेटर इश्यू करती है, चाहे वो पोस्ट करे या फिर अपने यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर रखे। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वेल इन एडवांस में यूनिवर्सिटीज अपनी सभी को पोस्ट कर देती है या फिर वेबसाइट के ऊपर रखती है। और इस लिस्ट में जो है आपकी एंट्री जो एडवांस में पहुंच चुकी है उसमें आपका नाम होता है, और वो आपके लिए एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ हमारी एंट्री जो है वो ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल गेम्स और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होता है, इवेंट वाइज पार्टिसिपेशन होता है, तो उनका जो परफॉर्मा है इवेंट के साथ जो है, चाहे वेट के साथ हो जिसमें जूडो है या वेट लिफ्टिंग है या बेस्ट फिजिक है, बॉडी बिल्डिंग है, इन सब में आपके डिटेल्स परफॉर्मा जो है नाम के साथ, वेट कैटेगरी है, इवेंट है, ये सब जो है ये बाद में ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी को आपको भेजना होता है। फिक्सर जो है वो 1 महीने से पहले, अगर
कोई टूर्नामेंट जिस डेट पे शेड्यूल है उसके एक महीने पहले जो है फिक्सचर्स ड्रॉ किए जाते हैं। जब सभी यूनिवर्सिटीज जो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है उस पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाता है। अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहे तो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव कैन रिमेन प्रेजेंट while drawing the fixtures at the host university। एक महीने पहले जो है वो सारी शेड्यूल जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी के पास जो है पहुंच जाना चाहिए, ताकि जो है ये आपको फर्दर अप्रूवल है, फर्दर प्रोसीडिंग्स है, रिजर्वेशंस है, इन सब के लिए अप्रोप्रिएट टाइम मिल पाए, इसकी वजह से जो फिक्चर्स जो है वो एक महीने पहले भेज दिए जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जब जो होस्ट यूनिवर्सिटी है वो फिक्सचर्स की कॉपी है और इनविटेशन लेटर है और कवर लेटर है, जो उसके साथ जो है सभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी को वो मेल कर दे, पोस्ट करे या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर रखती है जनरली। और कवर लेटर जो है, उस कवर लेटर में जनरली आप जहाँ पर जो होस्ट यूनिवर्सिटी उसके बारे में लिखा जाता है, अकोमोडेशन किस तरीके का होगा, वेदर किस तरीके का होगा, टूर्नामेंट किस बेस के ऊपर खेली जाएगी, टूर्नामेंट में यूज होने वाले इक्विपमेंट है, उसके बारे में जो है कवर लेटर में सारी चीजें, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर कांटेक्ट पर्सन जो है उनके डिटेल्स के साथ, उनके कांटेक्ट डिटेल्स के साथ, कवर लेटर के साथ फिक्सचर्स की कॉपी जो है वो पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज को भेज दी जाती है। अकोमोडेशन जो है वो एज पर द रूल जो है फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन होस्ट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना होता है, लेकिन पिछले 2 साल से कहीं पर हमने देखा है कि अकोमोडेशन जो है वो फ्री नहीं दिया जाता। यूनिवर्सिटी को मिनिमम चार्ज के ऊपर पे एंड यूज के तौर के ऊपर अकोमोडेशन दिया जाता है, जहाँ पर साथ ही में बहुत अगर वेदर के हिसाब से उनको जरूरी सामान जो है वो भी दिया जाता है। बाय बाय लॉज जो है ये अनफर्निश्ड फ्री अकोमोडेशन जो है होस्ट यूनिवर्सिटी को देना होता है। टूर्नामेंट जो है वो टूर्नामेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो जब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जाए तो वेल इन एडवांस में आपका ट्रैवल प्लान जो है कवर लेटर के साथ ही जनरली आजकल भेज दिया जाता है। तो उसमें ट्रैवल प्लान जो है वो आप भेज दीजिए, एडवांस में ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको रिसीव करने के लिए या फिर उनको अकोमोडेशन के अरेंजमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजिंग को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। इसलिए वेल इन एडवांस में आप ट्रैवल प्लान जो है अपना सबमिट कर दें। जो मैनेजर मीटिंग है वो हमारे लिए टीम कंपेनियन के लिए ज़रूरी है अटेंड करने के लिए। जनरली जो है वो टूर्नामेंट की अगली इवनिंग पे ये टूर्नामेंट वेन्यू के ऊपर ही होती है, या फिर कवर लेटर होता है उसके ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन किस डेट के ऊपर होगी, किस वेन्यू जो है उसके ऊपर और किस टाइम पे होगी, ये मैनेजर्स मीटिंग की डिटेल्स जो है कवर लेटर में लिखी होती है। लेकिन ये जो पॉइंट है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एज अ मैनेजर, एज अ कोच के तौर के ऊपर हमें जो है ये मीटिंग अटेंड करनी होती है। मैनेजर्स मीटिंग के दरमियान ही जो हम सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हम लोग तैयार करके ले गए, पूरी फाइल जो है वो हमें वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। और एलिजिबिलिटी परफॉर्मा जो हम ले गए हैं उसकी रिसीव्ड कॉपी जो है हमें सबमिट 4 कॉपी उनको सबमिट करनी है और एक रिसीव्ड कॉपी हमारे पास होनी चाहिए स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ। साथ ही साथ जो हमने सारे ऑफिशियलिंग फीस है, सारे चार्जेस जो है वो जैसे ही वहाँ पर हमें पता चलता है वो जो है हम वहीं पर सबमिट कर देने चाहिए। और उसकी रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट हमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से सारी चीज़ें हमें अपने पास रखनी है। मैच डे, अगर टूर्नामेंट डे, इनॉग्रेशन डे की अगर बात करें तो हमारे लिए मार्च पास जो है वो करना ज़रूरी होता है। और मार्च पास के दरमियान हमारे पास जो है हमारी यूनिवर्सिटी का एम्बल वाला यूनिवर्सिटी फ्लैग जो है वो जो है हमारे पास होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी हैंडबुक में हर एक यूनिवर्सिटीज़ को अपने कलर्स जो है, किट के कलर्स जो है वो जो है वो दिए गए हैं। वो कलर्स के हिसाब से अगर आपका यूनिवर्सिटी फ्लैग हो, यूनिवर्सिटी किट हो, तो और भी आपका प्रेजेंटेशन जो है आपकी यूनिवर्सिटी का वहाँ और भी अच्छा रहता है।
ओके, पोस्ट टूर्नामेंट जब आप वापस आ रहे हैं तो अपने ब्रीफकेस में आप जो है ये चीज़ें लाना मत भूलिएगा, जहाँ पर आपके पास हर एक मैच का रिपोर्ट कॉपी होना चाहिए। मैच रिपोर्ट कॉपी इसलिए होनी होनी चाहिए क्योंकि जब स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर जब गवर्नमेंट एजेंसीज रिक्रूटमेंट करती है तो टीम इवेंट में आपके बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उस एक्चुअल मैच में खेले हैं या नहीं खेले हैं, वो कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसीज मांगती है कि हाँ भाई, अगर आपका प्लेयर जो है 16 की टीम में था, 18 की टीम में था या फुटबॉल में 20 की टीम में था, तो वो एक भी मैच खेला है कि नहीं खेला है, वो जो है वो वेरिफिकेशन के लिए मैच रिपोर्ट जो है वो जरूरी बनता है। ओके, तो मैच रिपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सारे जो पेमेंट आपने किए हुए हैं उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, जो आप वापस आके अपनी अथॉरिटी को सबमिट करेंगे रिइंबर्समेंट के लिए। और आपने इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, आप ऑन ड्यूटी थे, उसके लिए जो है आपको रिलीविंग जो है, ये रिलीविंग आई सर होप आपको आवाज नहीं आ रही सर। ओके, आई होप इट इज नाउ ऑडिबल। डन या ओके, सो रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है ये आपके लिए वहाँ पर अटेंडेंस सर्टिफिकेट का काम करता है कि हमारी टीम ने और हमने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और इस डेट को हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे और इस डेट के ऊपर जो है हम लोग आपके वेन्यू से जो है वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, सी ऑफ हो रहे हैं, इसलिए रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी होता है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप वापस लाकर सारी फाइल जो है वो अपने जिसमें आपके रिसीव्ड कॉपी ऑफ एलिजिबिलिटी प्रोफोमा जो है, मैच रिपोर्ट से, पेमेंट से, और वहाँ से जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिले हैं वो डॉक्यूमेंट जो है आप अपने यूनिवर्सिटी में, होम यूनिवर्सिटी में आकर अपनी अथॉरिटी को रिकॉर्ड के लिए जो है आप सबमिट कर दें। सो ये जो है मेरा थोड़ा सा जो 15 सालों के असिस्टेंट डायरेक्टर के कैरियर में मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर सीखे हैं उसको मैंने बताने की कोशिश की है। Now the presentation is open for any discussion if anyone have any doubts. Jetwa sahib. Thank you very much, sir. We may have 5 minutes to 7 minutes question answer session if the participants would like to continue with this. पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी अगर जो सर ने अभी टॉपिक प्रेजेंट किया है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम 5 से 7 मिनट तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों में से? Okay, great. Thank you very much, Dr. Vikas Prajapati sir, for your very insightful and very precise session on AIO competition rules and regulations. वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज वे में आपने बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और एंटायर टीम की, ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आपको एक्सटेंडेड ग्रेटिट्यूड है वो ऑफर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। થેન્ક યુ જેઠવા સાહેબ, આપનો ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સ્ટાફનો તેમજ સર્વે ઉપસ્થિત મારા શારીરિક શિક્ષાના બંધુઓનો થેન્ક યુ વેરી મચ. With lots of patience you have heard me, and thanks to the staff of SJSU, Gujarat University and the whole fraternity of physical education to provide me such opportunity. And thanks and congratulations to the team of Swarnim Gujarat Sports University for organizing such a wonderful interactive sessions for the physical educationists. And on behalf of the physical education fraternity, I would like to congratulate Dr. Arjun Singh Rana sir for their appointment in governing council of
Lakshmibai National Institute of Physical Education. It is a really proud moment for the Gujarat physical education fraternity and the Swarnim Gujarat Sports University. Congratulations to you, Dr. Rana sir, and to the team of SGS. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Vikas sir. Thank you, Dinesh bhai. Thank you, Vijay bhai, Mitro. On this Thakur note, sahib, thank you. जी sir. Thank you, Vikas bhai. Thank you. Okay, on this note, I would like to welcome our today's second expert, Dr. Abhishek Thakur sir. Presently, sir is working with Saurashtra Cricket Association as a physiotherapist. Before that, sir is working with Gujarat Cricket Association. Sir has been working in this field as a physiotherapist since more than 11 years. Sir has a very vast on-field experience of sports injuries and its rehabilitation. So I would like to invite Dr. Abhishek Thakur sir to deliver his session. Sir, please. Am I audible, sir? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर. Okay, hello everyone. Good afternoon. Okay, I'm Abhishek Thakur. Currently, I'm working with Saurashtra Cricket Association Ranji Trophy team. So thanks a lot again, Swarnim Gujarat Sports Authority, to give me the chance to present a wonderful session on the injury management. So without wasting time, we'll start our presentation. Sharing is okay, sir? No, not yet, sir. It is not visible yet. Just a minute. So it is like present now, and then सर अभी नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है सर. नहीं प्रेजेंट नाउ में जाना है ना मुझे. जी सर, जी आपको सबसे नीचे राइट मोस्ट में so there are three options. जी No, present now there are three options: your entire screen, a window, and a tab. सर अगर आपने प्रेजेंटेशन अलग ओपन करके रखा है, then tab will also serve, और entire स्क्रीन में जाके आप फिर अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर लेंगे तो फिर दिखेगा सर. Okay now? Yes sir. Now it is presenting. Yes sir. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर, इंजरी मिनिमाइज. सर अपनी जो स्क्रीन है वो पीपीटी आपका प्रेजेंटेशन मोड में ला दीजिए. Yes. Okay now? सर अभी हो रहा है. अभी हो रहा है ना? Sir, meanwhile you may proceed, sir, please. Yeah. So our topic is today injury minimization by risk factors assessment. So basically क्या है कि हम
कंप्लीटली कोई भी इंजरी को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे कोई ग्राउंड सरफेस की वजह से एंकल ट्विस्ट हो गया तो उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे दो प्लेयर्स आपस में टकरा गए, जो कोलाइड हो गए, तो वो इंजरी हम स्टॉप नहीं कर सकते। कुछ बॉल लग गई और इंजर्ड हो गया प्लेयर, तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में जो भी इंजरी है, हम क्या कर सकते हैं, तो उसके जो भी रिस्क फैक्टर है, उसके जो भी रीजन है कि किस वजह से इंजरी हो रही है, वो हमारे हाथ में है वो सुधारना। तो उसका हम असेसमेंट करेंगे कि वन बाय वन हम फैक्टर लेके जाएंगे कि ये फैक्टर है और उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग इंजरी मिनिमम कर सकें, राइट। So next is there are two types of factors. One is intrinsic factor and one is extrinsic factor. So we'll go one by one. तो पहले जो इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर जो भी है वो कौन कौन से है, तो ये लिस्ट है, टाइटल है, वर्कलोड, फिर एमएस के जो मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, मसल इम्बैलेंस, मिनिमाइज रीअकरेंस ऑफ द इंजरी, स्लीप फटीग, रिकवरी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, बायोमार्कर्स एंड मेडिकल इश्यूज। तो ये सब है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदरूनी जो रिस्क फैक्टर्स है जो हमारे बॉडी में इफेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम इंट्रिंसिक बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज वर्कलोड। तो मैंने ये देखा है कि जितनी भी इंजरी होती है तो सबसे ज्यादा इंजरी की रीजन एक ही है कि ओवर वर्कलोड। जो भी प्लेयर ओवर वर्कलोड करता है, इस वजह से हम अभी मतलब स्मार्ट वर्क करते हैं रादर देन डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। तो हमको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इंडिविजुअल कौन से स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो। दूसरा ये जानना पड़ेगा कि आपको कितना वर्कलोड लेना है। तीसरा ये चीज जानना पड़ेगा कि जो भी प्लेयर्स के साथ हम काम करते हैं, या तो आप प्लेयर्स हो तो खुद के बॉडी को आपको पहचानना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप लोग कितना वर्कलोड लेना है वो डिसाइड कर सकोगे, ठीक है। तो अभी ओवर वर्कलोड से क्या क्या इंजरीज हो सकती है, ये सिर्फ नाम दिए, स्ट्रेस रिएक्शन, स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये स्ट्रेस रिएक्शन, स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो बोन या जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है। जैसे आपको क्रॉनिक शिन पेन हो गया, बहुत टाइम से आपको शिन पेन है, जब रनिंग करते हो तो बहुत एथलीट को होता है, ये कॉमन है। तो बहुत टाइम से अगर वो चाह नहीं रहा है तो आपको चेक करवाना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस रिएक्शन या स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है ना। वैसे ही लो बैक इश्यूज होता है, बहुत टाइम से होता है, स्पेशली हमारे क्रिकेट में बॉलर्स को इट इज अ कॉमन इंजरी कि जो यंग एज बॉलर्स रहते हैं उनको राइट हैंडेड फास्ट बॉलर होते हैं, उनको लेफ्ट साइड में स्ट्रेस रिएक्शन या स्ट्रेस फ्रैक्चर पड़ता है, या तो लेफ्टी जो भी होते हैं बॉलर्स उनको राइट साइड में इश्यूज होता है। देन मसल स्ट्रेन और टेयर्स, जैसे हम बोलते हैं स्नायु फट जाना, रनिंग करते करते क्वाड्रिसेप्स जो थाई मसल्स है उसमें सबसे ज्यादा खिंचाव आता है, इट इज कॉल्ड मसल स्ट्रेन्स और टेयर्स। फटीग, थकान लगना, बॉडी रिकवर नहीं होती है, सुबह प्रैक्टिस होती है, शाम को प्रैक्टिस होती है, तो दो टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर इन बिटवीन इतना रेस्ट नहीं मिलता है तो हमको थकान लगती है, या तो मैच के अगले दिन हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं टूर्नामेंट के अगले दिन कि हम हमारा 100% मैच में नहीं दे सकते, तो दैट इज फटीग। मसल स्पाज्म, अचानक से कोई भी टिश्यू जकड़ना, जैसे दौड़ते दौड़ते काफ मसल एकदम टाइट हो गया, विच इज क्रैम्प, या तो सुबह में उठोगे तो बैक मसल स्टिफ रहेंगे, सो दिस ऑल मसल स्पाज्म। डिलेड रिकवरी, जैसे मैंने बोला कि रिकवर ठीक से नहीं होना, लेजीनेस लगना, ठीक है, बॉडी 100% एफर्ट नहीं दे सकता, so that is delayed recovery, and then ultimately overall effect on performance। तो ये सब वर्कलोड की वजह से ये सब consequences है कि जो कोई भी प्लेयर को हो सकता है। तो अभी हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आई एम वर्किंग विद क्रिकेट सिंस 14 years, तो हम लोग मैं एग्जाम्पल दूंगा तो क्रिकेट का ही दूंगा, एज मैंने दूसरे स्पोर्ट्स में काम नहीं किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉग बुक रखते हैं, तो उसमें मैं डेली रखता हूँ, जब भी प्रैक्टिस रहती है, जब भी टूर्नामेंट रहती है, तो मैं लॉग बुक में हर एक जो हमारे पेस बॉलर्स रहते हैं, जैसे स्पिनर्स रहते हैं, तो डेली मैं उनको पूछता हूँ कि आज कितनी ओवर डाली है, तो वो टेंटेटिवली मुझे बताते हैं। जब टूर्नामेंट रहती है तो स्कोर शीट में लिखा ही होता है, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ वीकली कि उनके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। तो आप भी जो भी स्पोर्ट्स में हो तो आप भी एक हैबिट रखिए कि आप लॉग बुक मेंटेन रखो कि कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर है तो आज उसने कितने स्किल में प्रैक्टिस करी है, या तो ट्रेनिंग का लोड इसके ऊपर कितना हुआ है, उस तरीके से आप लॉग बुक मेंटेन रख सकते हो।
सेकंड, बैटिंग फील्डिंग ट्रेनिंग लोड्स, जैसे मैंने आज योयो टेस्ट लिया या 2 किलोमीटर रन टेस्ट लिया या शटल रनिंग करवाया या स्प्रिंटिंग करवाया, तो मैं ट्रेनिंग लोड भी रखता हूँ। जैसे स्ट्रेंथनिंग करवाया है तो स्ट्रेंथ सेशन का भी लोड रखता हूँ कि प्लेयर के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, सही में बैटिंग कितना प्लेयर कर रहा है, फील्डिंग कितना कर रहा है, तो वो सब भी हम लोग अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। वो मैं रेट ऑफ आरपी जो हम बोलते हैं आरपी स्केल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, 0 to 10। तो हर एक सेशन के बाद प्लेयर्स को पूछते हैं कि उसको कितनी थकान लगी है, तो वो बताता है कि आउट ऑफ 10 आई गॉट 6 मतलब दैट इज अबोव एवरेज। तो मुझे पता होना चाहिए कि नेक्स्ट सेशन से पहले वो फुली रिकवर कैसे होगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्कलोड का कैलकुलेशन और मैनेजमेंट कर सकते हैं। थर्ड वन इज एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो, बाद में बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो जैसे ये एग्जांपल है, जैसे हमारे सौराष्ट्र के जो भी बॉलर्स है, तो उसका पूरे सीजन में किसने कितनी बॉलिंग डाली है, उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है और उस हिसाब से हम 2 मैच के बीच में उसको रेस्ट देते हैं। जैसे हमारा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा जो टेस्ट सीजन, जो रणजी ट्रॉफी टेस्ट मैचेस जो रहता है, वो 4 दिन का एक मैच रहता है। तो अगर मैंने मैच 1 में आप देखो, मैच 2 में आप देखोगे तो चाहिए उनड़कट ने 34 ओवर्स डाली है, तो वो हिसाब से उसको दूसरे 4 दिन जो बीच में हमको रेस्ट पीरियड मिलता है दूसरी मैच के बीच में 4 दिन का, तो उसमें मैं उसको एडवाइस देता हूँ कि तूने बॉलिंग लोड ओवर, मतलब उसका जो भी वर्कलोड क्वाटा था वो ओवर हो गया है, मतलब इनफ ही हैज बॉल्ड इन द मैच। तो उसको एक एडवाइस देता हूँ कि अभी तू 3 दिन या 4 दिन कुछ भी बॉलिंग मत कर, सिर्फ रेस्ट कर। मैच के पहले दिन अगर उसको रिदम में आने के लिए थोड़ी इफ ही इंसिस्ट कि मुझे थोड़ी बॉल डालनी है, तो आई वुड अगेन एडवाइस के 4 से 5 ओवर वो भी दिस 50 to 60% इंटेंसिटी से वो डालेगा। तो दूसरी मैच के पहले इस बॉडी वुड बी डेफिनेटली रिकवर्ड, मतलब ठीक से अच्छी तरीके से रिकवरी हो जाएगी, तो वो थर्ड मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो सेम विथ ऑल द बॉलर्स, मैं उनके साथ कंसल्ट करता हूँ, कोच के साथ कंसल्ट करता हूँ, प्लेयर्स के साथ कंसल्ट करता हूँ, और इस तरीके से हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं। तभी हम लोग एक प्लेयर को पूरा सीजन और थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ रणजी खेलते, ये उसके बाद इंडिया ए खेलेंगे, इंडिया की टीम में कहीं सिलेक्ट हो गए या आईपीएल की टीम में सिलेक्ट हो गए, तो थ्रू आउट द ईयर उनके साथ जो भी कोच है, जो भी फिजियोस है, जो भी ट्रेनर्स है, वो लोग सबका वर्कलोड मैनेजमेंट करके ही चलते हैं। देन ओनली वी कैन सस्टेन द प्लेयर, और वो भी 100% फिटनेस के साथ। तो सेकंड थिंग, इफ यू आर इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब हर एक आप जो है वो हर एक अलग अलग फील्ड से आए हो, तो आपको एक चीज करनी चाहिए, फर्स्ट तो लॉग बुक मेंटेन करना। सेकंड थिंग, जो भी क्रिकेट में है, दैट इज, ये मैं कर रहा हूँ नॉट ऑन माय एक्सपीरियंस, ये मैं काउंट कर रहा हूँ, दैट इज आल्सो नॉट ऑन माय एक्सपीरियंस। क्रिकेट में बहुत टाइम से 15-20 साल से अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेशली आईपीएल के स्टार्ट होने के बाद। ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज है, इंग्लिश कंट्रीज है, वो लोग उसमें मास्टर है। तो उन लोगों के डेटा के, और यहाँ पर भी अभी बीसीसीआई एनसीए में भी चल रहा है 3-4 साल से, तो हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं इंजरी का, और उसके हिसाब से इट इज बीन सेड, रिसर्च आर्टिकल में इट इज बीन सेड कि पेस बॉलर को 180 अराउंड बॉल से ज्यादा एक वीक में नहीं डालना है। सो दैट इज 30 ओवर्स वीकली, 30 ओवर्स से ज्यादा नहीं डालना है, वरना वो प्लेयर इंजरी प्रोन हो जाएगा, वरना उसको इंजरी आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो आपको भी, आप कौन से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो वो देखना है। दूसरा, उसमें भी आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ो, उसमें डेटा कलेक्ट करो, कहीं से भी मिल रहा है, उसमें आप देखो कि आपको कितना वर्कलोड चाहिए वो प्लेयर के हिसाब से, रिसर्च क्या कहता है वो देखो। तीसरी चीज, जो भी आप प्लेयर के साथ काम करते हो उसकी भी फिटनेस देखो। अगर वो लोड लेने के लिए तैयार नहीं और आप एक्स्ट्रा प्रेशर देके उसको लोड दोगे, वर्कलोड एक्स्ट्रा कर दोगे, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। मेक श्योर कि उसकी रिकवरी 2 सेशन के बीच में उसकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको कम्युनिकेट करो प्लेयर्स के साथ अच्छी तरीके से, उनको कंटिन्यूसली यू कीप ऑन आस्किंग कि वो ठीक से रिकवर हो गया है कि नहीं, वो सेकंड सेशन के लिए रेडी है कि नहीं। तो वो सब आप ध्यान में रखो, तो हम प्लेयर्स की इंजरी मिनिमाइज कर सकते हैं और उसका 100% आउटपुट हम परफॉर्मेंस में ले सकते हैं। नाउ थर्ड वन, जैसे मैंने पूछा था, मैंने आपको बताया था सॉरी, कि 0 to 10 के ऊपर हम वैल्यू करते हैं आरपी स्केल। तो हर एक सेशन के बाद मैं प्लेयर्स को पूछता हूँ कि उनको कितना स्ट्रेन पड़ा है, दैट इज रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, कितना एक्सर्ट हुआ है वो प्लेयर, तो इतनी थकान लगी है। तो वो बोलेगा कि आई गॉट 3 आउट ऑफ 10 मीन्स मॉडरेट इंटेंसिटी, तो फाइन है, मैं वो इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा के ले सकता हूँ।
कोई प्लेयर जो बिगनर होगा उसको सेशन थोड़ा हार्ड लगेगा, तो वो शायद बोलेगा मुझे 7 स्केल है मेरा आरपी, तो मैं वो इंटेंसिटी उसके लिए थोड़ी नेक्स्ट सेशन में कम कर दूंगा। तो उस हिसाब से मैं उसका प्रोग्रेशन करते जाऊंगा। तो आरपी स्केल है कि जो हम जब अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, जब मेरा डॉक्यूमेंटेशन जब मैं बनाता हूँ, तो ये स्केल के हिसाब से हम पॉइंट पुट अप करते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो, ये थोड़ा टफ है कैलकुलेट करने में। एक्यूट वर्कलोड मतलब कोई भी प्लेयर मेरे पास आता है, सॉरी PPT not working. नॉट वर्किंग No. फ्रॉम द Start वेरी saying फर्स्ट, no. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, First जस्ट अ मिनट। page only so. Okay, what I'll do, I'll restart from my mobile. Is it okay? Okay. Hello. Hello. Yes sir. Yeah, I'll again restart. Is it okay? Okay. नहीं no अभी भी कुछ पहला पेज ही दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। अभी इसमें? Yes, sir. Now it's okay. Yes, sir. Okay. बराबर। अभी बराबर है ना? तो मैं इसके यहाँ से 1 by 1 जाऊंगा। साइड चेंज करके देना पड़ेगा सर आपको। सॉरी? साइड जो है वो उसको चेंज करना पड़ता है यार। मैंने स्लाइड शो ही किया है, बट आई डोंट नो, यहाँ मुझे तो मतलब ये जा रहा है मेरे में तो, पर आप में वहां पर नहीं दिख रहा होगा। अगर ऐसे करके 1 by 1, हाँ ऐसे 1 by 1 करूँ तो चलेगा ना? ओके, तो रिस्क फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, बराबर। तो इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर मैंने जो बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट है, एमएस के फैक्टर है, मसल इम्बैलेंस, मिनिमाइज रिकरेंस ऑफ द इंजरी, स्लीप फटीग एंड रिकवरी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, बायोमार्कर्स एंड मेडिकल इश्यूज। तो वर्कलोड में मैंने जैसे बताया कि ओवर वर्कलोड से कौन कौन सी इंजरी हो सकती है, तो वो है स्ट्रेस रिएक्शन, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, मसल पूल होना, दैट इज स्ट्रेन एंड टेयर्स, फटीग, मसल स्पाज्म हो जाना मतलब टाइट हो जाना, डिलेड रिकवरी, जैसे रिकवरी डिले हो जाती है, और अल्टीमेटली मैंने जैसे बोला इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। अभी ठीक है ना सर, ऐसे जाऊंगा तो? डन, बराबर है सर। हाँ, तो अभी मैंने बोला जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट में हम कैसे करते हैं, तो बॉलर्स का बॉलिंग लोड हम काउंट करते हैं, लॉग बुक को मेंटेन करते हैं, बैटिंग, फील्डिंग और ट्रेनिंग का भी लोड हम लोग काउंट करते हैं, और तीसरा एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये लॉग बुक है, जैसे मैंने बताया प्लेयर्स का कि हर एक प्लेयर्स ने कितनी बॉलिंग डाली है पर मैच, और अल्टीमेटली पूरे सीजन में उन लोगों ने कितनी बॉलिंग डाली है। तो जैसे मैंने बताया कि ये मैच में ये बॉलर ने इतनी बॉलिंग डाली होगी, मतलब दैट इज ये ओवर्स के हिसाब से लिखा है कि जैसे सेकंड मैच में उनाडकट ने 34 ओवर्स डाली है ये लॉग बुक के हिसाब से, तो मैं उसको 4 दिन का रेस्ट दूंगा, मतलब 1 हफ्ते के लिए मैं दूसरे 3 दिन जो रिकवरी के है उसमें मैं उसको प्रॉपर रिकवर होने दूंगा, तो नेक्स्ट मैच में परफॉर्मेंस दे पाएगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. या सो नेक्स्ट इज, मैंने जैसे बोला आरपी स्केल, रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन स्केल। ठीक है, तो उसकी हम वैल्यू 0 से 10 तक काउंट करते हैं। तो 0 इज जैसे बोला कि 0 किसी को मतलब कुछ भी ट्रेनिंग सेशन हो गया, कुछ थकान नहीं लगी, वो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं थकान लगी, तो दैट इज रेस्ट, मतलब ओके, वेरी ओके, इज वेरी फिट, या तो हमारी कुछ इंटेंसिटी नहीं थी सेशन में। 1 इज वेरी वेरी इजी, जैसे कोई 10-15 मिनट का फील्डिंग सेशन कर लिया, उसकी फिटनेस अच्छी है तो उसको थकान नहीं लगेगी। सेकंड इज इजी, थर्ड इज मॉडरेट, 4 इज समवॉट हार्ड, अच्छा हमने सेशन अच्छी इंटेंसिटी का लिया, पर हर एक का एक्सर्शन अलग अलग होता है, उनकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई बिगनर रहता है तो उनको बहुत टफ लगता है, जैसे किसी की फिटनेस अच्छी रहती है तो वही सेम सेशन उसको मॉडरेट इंटेंसिटी का लगता है। तो उस हिसाब से वो इंडिविजुअल प्लेयर की नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंटेंसिटी अप और डाउन कर सकते हैं। या तो जूनियर सीनियर एलिट कोई प्लेयर रहेगा, उसकी फिटनेस अच्छी रहेगी तो उसको सब सेशन एवरेज ही लगेंगे, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, पर यंग ग्रुप में वो सबको जो सेशन है वो एक्सट्रीम हार्ड लगेंगे, तो उनके लिए जो सीनियर की इंटेंसिटी वो नहीं चलेगी, हमको थोड़ी नीचे लानी पड़ेगी।
द थर्ड वन एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो, ठीक है, वो थोड़ा मैंने बोला कि टफ है समझने में। तो एक्यूट वर्कलोड हम क्या करते हैं, कोई भी प्लेयर आता है हमारे पास तो उसको हम एक वीक के बाद उसका हम टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं वो आरपी के हिसाब से, कि जैसे एग्जांपल दिया है कि 6 आरपी हर एक सेशन में उसको 6 आरपी नहीं, एक सेशन में उसको 6 आरपी लगा, टोटल सेशन हुए 60 मिनट्स के, टोटल उसका एक्यूट वर्कलोड हुआ 360। फिर हम पूरे महीने का लोड कैलकुलेट करते हैं और हम लोग फिर एक्यूट बाय डिवाइडेड बाय क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इट शुड बी बिटवीन 0.80 टू 1.30। इन सिंपल लैंग्वेज में हर एक वीक में प्लेयर का वर्कलोड 10% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा ऊपर या नीचे लेके जाओगे तो उसको नेक्स्ट महीने से इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आज मेरा सेशन 1 घंटे का रहा तो मैं नेक्स्ट सेशन 60 मिनट्स का रहा तो नेक्स्ट वीक से जो मैं सेशंस प्लान करूंगा वो 80 मिनट्स के लेके जाऊंगा, उसके नेक्स्ट में जाऊंगा तो वो 90 या 100 मिनट्स के लेके जाऊंगा। डायरेक्ट में एक वीक से दूसरे वीक में जंप नहीं करूंगा कि पहला वीक पूरा मैंने 1 आवर का सेशन रखा और दूसरे वीक से मैं 2 या 3 घंटे का सेशन लेके जाऊंगा। ऐसा अगर करूंगा तो प्लेयर्स को इंजरी आने के चांसेस ज्यादा है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो। द नेक्स्ट इज एमएस के फैक्टर्स जो हम फिजियोस करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग। तो एक प्लेयर के लिए अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगते हैं हमको। सो देयर आर सीरीज ऑफ टेस्ट, वो बहुत सारे टेस्टिंग रहते हैं, उसके टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स रहते हैं, वो